आजकल ना पता की है कल मैं कोई ड्रामा देख रही तो एक ही ड्रामा नहीं बल्कि कई और ड्रामिਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਪਿਓ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੈਡ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਿਖਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਲਿਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਡ ਕਰਤਾਰੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਕਲਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਔਰ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਫੁੱਫੂ ਜੀ ਸਨ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਫੁੱਫੂ ਜੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੋ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ੀਨਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜ਼ੀਨੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਿਤਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਬੁਰਾ ਦਿਖਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਸਰਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰ ਡਰਾਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਾਏ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਬਾਜੀ ਤਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੋ ਅਤੇ ਜਾਂ ਹਾਲੀ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਈਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਏ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਤਾਰਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਸੁਬਾਹ ਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ। ਮਤਲਬ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਨਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੋ ਜੀ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਂ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਫੁੱਫੋ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਫੁੱਫੋ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੋ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤਾਂ ਖਾਲਦ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਹ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਔਰ ਅੰਮੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਬੀ ਔਰ ਨੁਜ਼ਰਤ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸੀ ਸਕੂਲ ਸਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਕਾਲਜ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਠਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਨਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦਾਜਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਦਾਜ ਦੇ ਇਸ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਫੁੱਫੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਦੀ ਬੀਨਾ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣੇ, ਕਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਮੀ ਜੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਜੀਨਾ ਸੀ, ਜ਼ੈਦੀ ਸੀ ਔਰ ਤਾਰਕ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਖਾਲਦ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੋ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਲਾ ਮਾਮੂਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਮ ਉਮਰ ਸਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਜੀਨੀ ਹਰੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉਮਰ ਸਨ। ਬਾਜੀ ਤਾਰਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੋਫੀਆ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਆਮਿਰ ਸੀ, ਆਸਮ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਿਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ। ਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਜ਼ੈਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਹੀ ਸਾਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗੁਲਬਰਗ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ, ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਲਬਰਗ ਹੀ ਕਾਲ ਲਿੱਤਾ, ਗੁਲਬਰਗ ਹੀ ਕੋਠੀ ਲਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਗੁਲਬਰਗ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਯਾਮਾਹਾ ਉਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਫੁੱਫੋ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਬੀਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਲਬਰਗ, ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਗੁਲਬਰਗ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੈਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕੁਛ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਲੋਕ ਫੀਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹ ਸਸੁਰਾਲੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਨਵੀਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਤਮਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਹਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਔਰਤ ਫੁੱਫੋ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਔਰਤ ਖਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। अस्सलामुअलैकुम, मैं शहीना असद और आप देख रहे हैं शहीना असद का व्लॉग। मैं एक नए दिन नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आप कैसे हैं जी मेरे सज्जन मित्र? सारी दुनिया में जो जो देख रहा है उन सबको आदाब अर्ज़ है, सलाम है। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक ने कितना सोना हमें दिन दिया है। आज तो इतना अच्छा है ना, आज गर्मी नहीं है। आज कल की निस्बत 5% जो है ना कम गर्मी है वेदर में, मैंने देखा तो उसमें मेंशन हुआ था।
तो आज टेम्परेचर जो है ना वो 5% कम है, मेरा ख्याल है आज 26 टेम्परेचर होगा, पीक पे भी जाके या 27 हो जाएगा। लेकिन कल तो हमारा बहुत ज़्यादा था, मेरा ख्याल है कोई मुझे मेरी दोस्त एक बता रही थी कि 40 तक है, फील लाइक 40 है। और उस हवा में जो है ना कल हिद्दत थी। ये हमारे साथ हैं बाजी खतीजा वगैरह, तो वो घर के बाहर ना फ्रंट पे बैठ जाते हैं अपने मतलब फ्रंट वाले लॉन में। तो मैं भी चली जाती हूँ, मैं भी उनके पास बैठ जाती हूँ, गप्पें गुप्पें लगती रहती हैं। मैं वॉक भी करके आऊँ तो उनके साथ फटाफट बैठ जाऊँगी, थकी हुई आती हूँ तो कुर्सियाँ उन्होंने बिछाई होती हैं, और भी कोई हम साए चाहें तो इस तरह आ जाते हैं। लेकिन मैं और वो तो ज़रूर बैठते हैं, क्योंकि साथ साथ घर है हमारा बिल्कुल। तो बताना मैं ये चाह रही हूँ, कल इतनी हिद्दत थी कि वो भी भाई नहीं निकली और मैं भाई निकली कि उनका पता करूँ किधर है। आज वो भाई नहीं आई तो मैंने देखा कि वो अंदर ही हैं, और मैं जब अंदर गई उनके तो यकीन जाने मुझे ठंड पड़ी। मैंने कहा ना ना ना, आज भाई ना बैठे हैं आप, क्योंकि आज भाई बड़ी हिद्दत है और हवा में गर्मी है। तो बहरहाल आज मौसम बहुत प्यारा है। आज देखे मैं झूले पे बैठी हुई हूँ, बाहर आके बैठी हूँ। मैंने कहा बाहर आ जाके आपसे गपशप लगाती हूँ, बातें करती हूँ। तो बस बड़ा अच्छा दिन है, बहुत प्यारा दिन है। प्यारे प्यारे सारे बहन भाइयों से बात कर रही हूँ, प्यारे प्यारे अपने व्यूवर से बात कर रही हूँ, अपनी व्लॉग फैमिली से बात करते हुए बहुत अच्छा लगता है हम सारों को ही। फ़िज़ा भी, मुएस भी कई दफ़ा आपको पता है शामिल हो जाता है, और असद जान भी, सारे बहुत खुशी से जो है ना आप सारों से बात करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आप हैं हमारी व्लॉग फैमिली। तो बस देखिए कितना मतलब व्यू भी अच्छा है, बाहर बैठे तो एक खूब मज़ा सा आता है, लुत्फ़ आता है एक। मैं तो जब झूले में बैठती हूँ ना, यकीन जाने आपका कैमरा भी हिलने लग जाता है, वो भी झूला झूलता। तो ये सारे सिलसिले हैं, रिश्तों के बारे में बात हो रही थी। अजीब सी बात है, अभी ये मीडिया तो ले ही डूबा, मीडिया ने तो सत्यानाश ही कर दिया है हमारे सारे मुआशरे का। अच्छी अच्छी इतने मसले हैं हमारे मुल्क में, मसाइलिस्तान है, तो उन मसलों पे लिखो, उन मसलों पे कहानियाँ बनाओ। कहानी नवीसों से भी मैं हैरत ज़्यादा हूँ कि वो भी ये पता नहीं, मुझे लगता है पुराने ज़माने के कोई नावल निकाल लेते हैं और कोई उस अफसाने का हिस्सा लेते हैं, उस नावल का हिस्सा लेते हैं, उसका लेते हैं, और सारे जोड़ जाड़ के ना तो वो हमारे सामने ड्रामे की सूरत में ले आते हैं। क्या है यार ज़िंदगी, हम इतनी उम्र के हो गए हैं, आप इन चीज़ों से ही नहीं निकल रहे, और लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमारा ड्रामा ही नहीं बदलता कि कोई चेंज हो। जब अच्छे ड्रामे आते हैं इतना मज़ा आता है, और आप पता नहीं क्या बकवास ड्रामे शुरू हो जाते हैं। आज ड्रामों के ऊपर बात हो रही है। बहुत से कुछ मेरी बहनें हैं वो मुझे कहती हैं, मेरी व्लॉग फैमिली की, कि आप ड्रामे ना देखा करें, हम तो अब जो है व्लॉग ही देखते हैं ज़्यादातर। तो ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है कि आप व्लॉग देखते हैं, आपको अच्छा लगता है। लेकिन ड्रामा भी मैं एक तफरीह समझ के देख लेती हूँ कभी कभी, कि ये भी एक स्टोरी है, ख्वाह फेक है लेकिन चलो स्टोरी चल तो रही है ना, तो इसलिए मैं कभी देख लेती हूँ। बस बाकी ठीक ठाक है, सही चल रहा है, ज़िंदगी बड़ी स्मूथ चल रही है। अल्लाह मियाँ स्मूथ ही रखे हमेशा परवरदिगार। तो फिर बातचीत जारी रहती है। अब ज़रा नाश्ता करूँगी, अभी आपको दिखाती हूँ मैं क्या नाश्ता करती हूँ। ठीक है, मेरा नाश्ता बिल्कुल मुख्तसर है। आज अंडा भी नहीं बॉयल मैंने किया, जबकि मुझे अंडा बॉयल करना चाहिए था। 2-3 दिन हो गए हैं मैंने अंडा नहीं खाया। अल्लाह इतनी बड़ी मक्खी है, मक्खा है बल्कि। चले अंदर चलते हैं। हाँ जी, ये लेने लगी हूँ अब मैं दही। सबसे पहले तो मैं जो ना दही खाऊंगी। ये आ गई मेरी दही। इसे बंद करते हैं और दही डालते हैं प्याली में। मैंने ये प्यालियाँ स्पेशल ख़रीदी हुई हैं सिर्फ दही डालने के लिए। ये छोटी मैं लेती हूँ हमेशा, छोटी प्याली में ना डालूँगी,
क्योंकि मुझे प्यालियों में डाल के, हालांकि इधर बॉल पड़े हुए हैं जिनमें हम डाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा प्यालियों में डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ कि हम जब छोटे थे तो हमारी अम्मी जी जो है ना वो प्यालियों में डाल के दिया करते थे। मैं वो यादें ताज़ा करती हूँ अपनी। मैं ज़रा माजी में रहने वाली औरत तो नहीं बन गई, मुझे पता नहीं आप ज़रूर बताइएगा मुझे। ये देखें जी, क्योंकि अब दोबारा जो है ये चीज़ें लौट आई हैं और इधर कनाडा में ये चीज़ें बहुत मिलती हैं आपको, और पूरी मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी बहुत है। मैं लास्ट टाइम गई थी तो मैंने प्याले भी रखे हुए थे इस तरह के ना। ये मैं फ्रिज में जाऊंगी, फ्रिज में रखूंगी इसे, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है। एक निकालूंगी स्लाइस, उसे करूंगी रोस्ट टोस्ट। मैंने उसे टोस्टर में डाल दिया स्लाइस को। इसमें मैंने चीनी कभी नहीं डाली, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं थोड़ा सा ना, जो जैम बनाया था हमने स्ट्रॉबेरी का, मैं थोड़ा सा स्लाइस पे वो लगाऊं। तो अब मैं जैम पकड़ने लगी हूँ। इतना मज़ेदार है ना, लेकिन मीठा होने की वजह से इतना नहीं मैं खाती। ये जगह निकाली है मैंने, क्योंकि जब मैं वो निकालूंगी तो उस वक्त उस पे वो होगा, क्या कहते हैं, वो गिरेंगे उसके छोटे छोटे पोरे। तो मैंने कहा कि चंगेरी पकड़ लो। लो जी, मैंने जैम भी लगा लिया, थोड़ा सा मैंने इस पे मक्खन भी लगाया, पहले नीचे और फिर मैंने ऊपर जैम लगाया। ये मेरी दही और ये है हमारा नाश्ता। अब मैं नाश्ता करूँगी और फिर आपसे बातचीत करते हैं, ठीक है? नाश्ता करते हैं, आप भी फ़ौरन जाए नाश्ता करें अगर नाश्ते का टाइम है तो, ठीक है? ओके। A few moments later. आपको नाश्ता दिखाया पहले, फिर बातें की, सारा कुछ किया। अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपना लंच। आज चने थे, पिज़्ज़ा। ये खोलना ज़रा इसको, चटनी को। आज चने मैंने बनाए और बल्कि पड़े हुए थे, वो जो हम ख़त्म पे गए हुए थे ना, हमारी दोस्त ने में दिए थे सारा कुछ ना, सारा खाना। ये चटनी साथ बनाई, साथ चने, साथ ये हरी मिर्च और साथ नान। तो आज जनाब हम ये शुगल करते हैं, इसको देखते हैं कैसा मज़ा आता है या नहीं आता, ठीक है? तो मैंने कहा आपको दिखाऊं नाश्ता, तो मैंने दिखा दिया आपको। अब ज़रा आपको खाना भी दिखाते हैं। तो फिर खाते हैं जनाब, खाने की तरफ आते हैं और नोशे जहाँ करते हैं। अल्लाह ताला बरकत बनाए आपके लिए भी, हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। देख ले, अब मैंने कहा आपने, हमने आपको काफ़ी देर से आप पे मेहनत करके आ रहे हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत बीवी बच्चों के लिए। बीवी की थी, ये तो नहीं बोला आपने। और ये जो है, ये आपने ये तो नहीं किया कि बीवी की थी। नहीं, बीवी की थी इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बीवी। बीवी पूरी ताबेदारी कर रही है और ये बेटी के और लिए, बेटी भी कर रही है। बेटी के लिए खाने पीने की फ्लायर्स आए हैं। इनको बड़ा शौक है खाने पीने का। जी शाहजान को खाना खुना दे दिया था, फिर यस, उन्होंने खा भी लिया। खा भी लिया, क्योंकि मैं बिजी, तुमने देखा ना, मैना का फोन आ गया था तो उसमें बिजी हो गई। हाँ जी, इस वजह से मुझे पता ही नहीं चला कब खाना खा लिया, कब नहीं खाया, कोई पता। अच्छा, वो दही का मैंने जमा दिया, दही रख दिया, और जमा ठंडी हो गई। दही मेरे मुताबिक हो गई थी। मैंने कहा लगाऊं और रख दूं इसको, अब कल सुबह निकालेंगे इंशाल्लाह ताला सही है। दही को ना। नहीं, मैं तो गोलियां कभी नहीं खाती। नो जाओ। फेवरेट शाहजान खाते हैं, मैं तो नहीं खाती। या फिजा भी कभी कभी लेती है, मैं कहता हूँ खत्म, है ना? फिजा आप जी। भी लेती हो? यस। खत्म। इतनी मजेदार है।
अच्छा इसमें दो चीजें बड़ी खास हैं। एक तो ये बड़ी च्यूई दांतों को नहीं लगती। नहीं लगती है, उसको च्यू करते रहो हम्म। गम की तरह, चिंगम की तरह। दूसरा इसका टेस्ट जो है ना थोड़ा सा तुर्श भी है, हल्का सा तुर्शी तुर्शी है। हर फ्लेवर में। हाँ मीठा और वो तुर्शी, तो मुझे इसलिए पसंद है। दांत को नहीं लगती, मीठा है, च्यू करते रहते हैं, तभी इन्हें अच्छी लगती है। 1.5 मिनट तक रहती है आज मुंह तक में। मुझे समझ नहीं आई कि जहाँ पापा को ये क्या बच्चों वाली टॉफियाँ इन्हें इतनी पसंद है, बड़ी पसंद है। तो वो अब समझ आई है, उन्होंने एक्सप्लेन फिजा जान किया है इसलिए। हाँ मैंने आदिल साहब के बच्चों को लगा दिया इस पे, अच्छा, उन्होंने मंगवा लिया है। बड़ा शौक है इन बच्चों को। नहीं वो यहीं से ले लेते हैं। मेरे से दो। अच्छा आपसे लेते हैं, आप तो उनको बड़े शौक से देते हैं। आदिल साहब से बात करनी थी कि वो चीज़ें अब कर मेरे ख्याल में वो मेरा सामान को उधर फंसा होगा। आज आएंगी हाँ या कल डेफिनेटली अच्छा बेल करेंगे तो रखवा देना जहाँ भी रखवाना। ठीक है। 2-3 पैनल होंगे लंबे लंबे देर से। आदिल साहब को नहीं फोन करें, वो बेल करेंगे कि हमें बेल करेंगे? पता नहीं इधर होगा या उधर होगा। आज इधर भी होगा। अगर चलो आपकी वो तरफ हुआ तो आप अभी करना। सैटरडे को अगर मुकम्मल हो जाए ना तो मतलब आप सुबह वो फर्श भी अदल भाई जो हैं वो वाटर क्या है पावर ले हैं, तो फर्श भी सही हो जाए। पावर वॉश। पावर वॉश, हाँ वो आ जाए ना तो फर्श भी सही हो जाएगा। और फिर हम भी सारा क्यों फिजा ये किस चीज़ की बात हो रही है? व्यूअर्स को कुछ नहीं पता। ये गजीबो की बताया करें यार। शाहबा गिर गए हैं वहाँ पर। शायद ना आप गिर इतनी गए। गहराई से बातें कर चुके हैं, ये होगा वो होगा, पता ही कोई नहीं। वो कहते सारी रात हीर की स्टोरी सुनाई, सुबह वो कहते हैं भाई साहब कि हीर आदमी था या औरत। बड़ा ही ये कपड़ा वो आदमी अजीब था जिसको यही पता नहीं कि वो आदमी था कि औरत। नहीं अभी आप भी तो बात कर रहे हैं, आप ही तो कह रहे हैं वो सामान आएगा वो अंदर रखा दीजिएगा। मैं भी आगे से कह रही हूँ कि आदल भाई अब सैटरडे को मुकम्मल कर दें। हमारे गजीबों के साथ स्टोर है, ये उसकी पैनलिंग कर रहे हैं सारी बाहर से ना सारा का उसको और मतलब सेव करने के लिए मौसमों क्योंकि से। वो पेंट हर साल 2 साल बाद करना पड़ता है। तो हमने कहा वो पेंट को हटा के पैनलिंग कर दें। तो ये है वो चक्कर, वो पैनलिंग हो जाएगी ना फिर फर्श की सफाई होनी है, तो फिर इंशाल्लाह ताला उधर से सामान उठा लाएंगे। होम डिपो पे पड़ा हुआ है तो वहाँ से उठा के सेट करेंगे। अच्छा वो फिजा वो रॉड का पानी है पता है कुछ? उन्होंने 8 काव है तो अब कल काव है तो कल तक आ जाएगी। नहीं कल आज परसों 7 है। तक भी आ जाए तो ठीक है, कल परसों तक आ जाएगी सैटरडे संडे वो लगा भी देंगे हम। मुझे लगता है सैटरडे तक हो जाएगा, इंशाल्लाह। सब हो जाएगा। तो ये इंशाल्लाह ताला जो है मेरा ख्याल है संडे तक कंप्लीट हो जाएगा गजीबो का सारा काम। हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हो जाना भी चाहिए। मंडे को पहली कॉफी उधर बैठ के पिलाइएगा इंशाल्लाह। ताला इंशाल्लाह। और फिर हमने डॉक्टर साहब जो आए हुए हमारे डॉक्टर नुमान, डॉक्टर नुमान हाँ उनसे बड़ा उनकी फैमिली को भी बुलाना है। हम बुला नहीं पा रहे, उनको भी नहीं बुला पा रहे, मिले भी नहीं है मुलाकात। आज मैं कहा था फ़ोन करूं कि हम आना चाह रहे हैं आपकी तरफ ना मिलने के लिए, फिर बाद में फिर दूसरी खाने पीने हो जाएंगे, पहले मिल तो लें। हम तो वो भी बाउंड होके बैठ जाते हैं। तो खैर बात होगी, देखते हैं क्या होती है बात। तो ये चक्कर है सारा। और कोई नहीं था जी आपने करनी हो तो नहीं, आपने करनी हो तो बासी हो गई, सारी बासी हो गई है। अच्छा। ताज़ा कोई चक्कर नहीं, ताज़ा सब खत्म सब बासी। सारा ताज़ा व्यूवर्स ख़त्म हो गया है। हमारी कौन सी बहन थी जिसने ये कहा है कि मेरा नाम नहीं लिया आपने सवाल जवाब में? एक सिस्टर ने हमारा रास्ता किया है, उसने मतलब कहा है मैं इतनी आपकी मतलब हूँ पुरानी यो नहीं, कमेंट्स। कोई कमेंट्स ऐसा कोई क्वेश्चन या कोई ऐसी बात थी या वैसे विश करती रहती हैं, सलाम करती रहती नहीं हैं? वो बताती हैं, वो मेरा ख्याल है बहरीन गई हैं उधर, वो ग्रीस ग्रीस गई हैं वो। तो उन्होंने अपना प्रोग्राम हमें सारा बताया था और हमने पहले उसका जिक्र भी कर दिया था, है ना? उनका नाम जो है क्या है उनका नाम? शाइस्ता मुनीर है ना हमारी सिस्टर अक्सर। शायद तो वो हमारे वाकई कमेंट सुन के बहुत आते हैं। हमारी व्लॉग फैमिली की बड़ी सरगर्म मेंबर हैं माशाल्लाह, फैमिली मेंबर। तो शाइस्ता
ऐसी कोई बात नहीं थी। चूँकि आपका हमने पहले जब आप ग्रीस गई थी तो उस वक्त हमने बड़ी तफसील से आपको विश भी किया, दुआ भी दी कि आप अल्लाह ताला आपको उधर मतलब जिस मकसद के लिए आप गए हैं उसमें कामयाबी दे। तो वही वजह थी कि फिर जब आपके बाकी आप हमें विशेष करती रहती हैं तो कोई क्वेश्चन जवाब वाला नहीं था। मगर कोई ऐसी बात नहीं है, आप सारे लोग हमारी फैमिली हो। जब हम ये कहते हैं फैमिली हो और हम दोनों फिज़ा मोए जब बातें कर रहे होते हैं आपसे तो हमें तो बड़ी खुशी हो रही होती है। ऐसे लगता है जैसे अपनी फैमिली से कर रहे हैं। शायद वो भूल गई कि नाम नहीं लिया होगा उसने। हाँ, कोई नाम अगर मिस कर जाते हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि आप शाइस्ता मुनीर है। हाँ, शाइस्ता मुनीर, आप खुश रहें, आबाद रहें। जिधर गई हुई हैं आजकल ग्रीस में अपने बच्चों के साथ, तो अल्लाह आ गई पाक होंगी। नहीं, वो कह रही थी कि 3 साल के लिए हम उधर गए हैं शायद। अच्छा अपना कानूनी कोई है ना, अच्छा लीगल का जो एक प्रोसेस है, अच्छा तो वो आपका प्रोसेस बड़ा अच्छा गुजरे और आप वहाँ सेट भी हों, बच्चे भी सेट हों और फ़ोन गिर जाए और फ़ोन गिर जाए और असद साहब ऐसे ऐसे 40 चिपलन बन जाए। ये रिमोट है। ये पूरे 40 चिपलन फिर बन जाते हैं। क्या करें हम तो बस इसी तरह ही है। आज इनके तख्ते तो उस पे मैं बैठ गई हूँ। इसीलिए मैं काजबाज हो गया हूँ। कभी इधर गिर रहा हूँ कभी इधर, क्योंकि इधर बैठा ही नहीं कभी मैं। समझ ही नहीं आ रही किधर आ गया। ये क्या है, इसकी भी कोई खबर नहीं क्या है, मुझे समझ कुछ नहीं आ रही। आपको नहीं आती होती, अपने तख्ते तो उस पे बैठे तो इनको सब समझे आती हैं। नहीं, बड़ा अनइवन फील कर रहा हूँ। ये ऐसे इधर से तकिया हुआ है यहाँ मेरे से लिए भी इतना बड़ा ये तख्ते ताउस है कि मैं बता नहीं सकती आपको। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तो छोटी सी हूँ और ये तख्ते ताउस इतना बड़ा छोटी सी हूँ। हाँ, तो ये सिलसिला है। खैर, हमारी कुर्सियाँ तो ये भी बड़ी हैं और जिधर फिजा बैठी हुई है वो भी बहुत बड़ी है ना फिजा। फिजा जान, मैं आपकी वीडियो देखी वंडरलैंड की, बहुत ही अच्छी थी, बड़ी अच्छी थी, नो डाउट। मैं सोच रहा था झूले की भी साथ साथ झूले ऐसे हम लोग जो देखे हमें भी चक्कर आ जाए, वो किधर आ गए, ये क्या है? अब वो उधर हम अपने आप को नहीं संभाल पाए थे, फ़ोन को कहाँ संभालते। उसका कोई हल निकालें। उसका हल मैंने इन्हें ये कहा था कि जब आप उतर आए हैं ना तो वो झूला फिर चलने लगा दूसरों को लेके, तो वो दिखा दें आप कि ये झूला चल रहा है जिस पे हमने ये सारा किया है, ताकि देखने वाले को पता तो चले कि ये झूले से उतरे हैं ये। या तो वो कैमरा लेने छोटा सा होता है हैंडी। नहीं, उधर बात आई नहीं है सर, मुझे पता अब वहाँ पे उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। वहाँ पे लिखा होता है, मैंने इयरिंग्स पहने वैसे, उन्होंने लिखा आप इयरिंग्स भी उतार दें, वो भी उड़ जाते हैं। नीचे वो कहती है कि इतनी चीजें गिरी हुई हैं लोगों हाँ, की, फ़ोन गिरा हुआ, फोन एयरपॉड्स तक गिरे हुए हैं क्योंकि जो जेबों से निकल के बाहर इतनी उल्टा हो भीड़ जाता है होती ना। आईडी गिरी हुई थी किसी की, हमने बड़ी चीजें कोई देखी। उल्टा हो रहा है, कोई सीधा। मेरी ऐनक नहीं गिर गई थी लास्ट टाइम, मेरी ऐनक गिर गई थी सीधा नजदीक की। हालांकि फुफेदान का उल्टा होने वाला भी नहीं है, वो उल्टा हाँ, नहीं होता, लेकिन स्पीड इतनी होती है हाँ, कि आप अपने आप को संभाल ही नहीं पाते हो। पॉकेट्स में से उछल के बाइक एक मैंने वीडियो देखी शाबा, उसमें एक लड़की अपना फ़ोन से वीडियो बना रही है, पता नहीं किस तरह, और एकदम अपनी पॉकेट में फ़ोन रखा हुआ है। वीडियो में नजर आया फ़ोन ऐसे उड़ के पीछे गया है और उसको रियलाइज़ हुआ मेरा फ़ोन नहीं है। वो पूरा बोलती थी मेरा फ़ोन नहीं है मेरे पास, मेरी पॉकेट में मेरा फ़ोन नहीं है, और उसको मिला नहीं फ़ोन। मोइस कहते हैं जब निकल जाए तो फिर मिलता नहीं है ये चीज़ें, वहाँ जाके कौन देगा, गया कहीं ये भी नहीं पता। नहीं मिलता। मैंने भी ऐनक इतनी ढूंढी थी, याद है ना, मैंने बहुत ऐनक ढूंढी, नहीं मिलती, कहीं पता नहीं उड़ के वो किधर चली गई है, वल्लाह ही ना। परिंदे खा जाते हो। नहीं, इसलिए आपकी बात का जवाब मिल रहा है आपकी बात का जवाब मिल रहा है कि हम वो नहीं बना सकते। उसका तरीका यही है कि जब उतरती हैं तो वो उसी झूले की एक छोटी सी वीडियो ले लें ताकि पता चले कि आपने ये झूला किया है। मोइस की ऐनक भी उतार दी और फ़ोन, एक में तो फ़ोन भी रखती है। कि तुम लोग कोई जीप वाला थैला भी नहीं ले गए, जो थैला कोई जीप वाला हो वो जाना वो सेफ नहीं था। उतर ऐसे वाला ले जाते हैं पीछे, नहीं वो नहीं, बैग नहीं आप लेके जा सकते राइड के वो ऊपर, उतार लेते हैं। वो रख के जाना पड़ता है, तो वो रख के जाना सेफ नहीं था। क्यों कोई उठा के ले जाए। नहीं, तो जो रखवा रहे हैं वो नहीं, वो ऊपर लिखा हुआ वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग।
नहीं तो कपड़े तो नहीं उतर जाते? नहीं, कपड़े तो कोई तो वो मोए जिप वाली शॉर्ट्स पहन के गए जिसकी जिप वाली पॉकेट थी, तो उसमें चीजें रख रहे थे। नहीं जिप वाली थी, पर हाँ। भी बच गई उसकी में। लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर वो होता तो बड़ा मजा आता देखने में। लोग बनाते हैं। यहाँ पे वो एक रोलर कोस्टर है, वो शायद रोलर कोस्टर के अंदर। नहीं, वो लोग अपने फोन से बनाते हैं। कईयों ने वो कैमरे वाली ऐनक पहनी होती हैं, एक वो रेबैन मेटा। फिजा मैं बात एक बताऊं, नहीं, लेकिन वो लोग बनाते हैं जो भूपजान ले लेके पागल हुए हुए हैं, जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जिनको जो हाथ ऐसे करके जा रहे हैं। हमने तो हाथ पकड़े होते हैं, टांगे फंसाई होती हैं। हमें तो आंखें भी नहीं खोली होती, तो वीडियो कहाँ से बनानी। वो आता है ना, उन्हें ऐसे हाँ जी, ये होता है लॉक, और फिर वो ऊपर जाता है नीचे जाता है, उनकी शक्ल में ऐसे ऐसे हो जाए। वो कैमरा एक फिट होता है यहाँ। मुझे लगता है कि वो उसका कई रोलर कोस्टर्स में उनका होता है। अपना कैमरा। एक स्लिंग शॉट है ना, उसमें था कैमरा लगा हुआ, वो जो गुलेल नहीं है जो ऊपर ठा जाती है फिर नीचे, वो उसमें सामने कैमरा लगा हुआ। मैंने तो कहा था कि अब जब ये जाते हैं ना तो हम भी चले जाएं, जरा हम भी जो किसी टूटे फूटे भी हम भी बैठ जाएं। अरे अल्लाह पर बड़ा डर लगता है। नहीं लगता भूपजान, दिल को अगर बंदा बना ले, होना कुछ भी नहीं है, अल्लाह खैर करे। 99% चांसेस है कुछ भी नहीं होगा, 1% चांस है शायद कुछ हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो बस दिल को बना लो कि कुछ नहीं होना। दिमाग में आप जैसे कहती है ना कि दिमाग को कर लो, दिमाग का ही होता हाँ, है, तो बस सारा बैठ जाओ दिमाग फिर का है। और आंखें बंद कर लो। याददाश्त तो नहीं खो जाता? नहीं, कुछ भी नहीं होता। हाँ, परेशान बीवी तो नहीं खो जाएंगी? नहीं, आप परेशान ना हो, आपको मैं खोने नहीं दूंगी। अच्छा, आप खुद शाह बाबा को हम खो सकते हैं बाबा, अल्लाह मैं अगर मैं भी ऐसे उड़ के किसी के घर में गिर जाऊं। नहीं, सब आप मेरे साथ उसमें बैठना, लकड़ी वाले में। ये कह रही है लकड़ी वाला मुझे सबसे मजेदार लगा, फेवरेट हो गया मेरा। मगर इसने दिखाया ही नहीं वो लकड़ी वाला। मैं कहा बेटा जब उतर फूफजान पार्क में दिखाते हैं। नहीं, वो लकड़ी वाला अंदर था, वो हमें नहीं नजर आ रहा था, तो हम कैसे दिखाते। क्या मतलब वो नहीं, आप जब उसमें राइड पे बैठते हैं जी चलने तक तो आप दिखा सकते हैं ना। हाँ, उस वक्त नहीं, हम बैठने से पहले फोन अपने पॉकेट जिप पे बंद करके सारा कुछ बंद करके बैठ जाते थे। वो उनको दे देते हैं। नहीं, जिप पे बंद करके अपने सेट मैं होके ये नहीं बैठते। कहती हूँ उस टाइम बनाए, मैं कहती हूँ जब हम उतर जाते हैं ना, उतर के 2 मिनट खड़े हो जाए, नया ग्रुप शुरू हो गया अब, तो उस वक्त आप बनाए उनकी नए ग्रुप की। चलो उसका रेल ट्रैक हाइट का पता चलता नहीं, वो मुझे आपका पॉइंट समझ आ रहा है। हमने जितने जो सामने थे हमने बनाई है उसकी, लेकिन जो अंदर काफियों के रेल ट्रैक्स अंदर हैं जो बाहर से नजर नहीं आते, तो वो हम नहीं बना सकते। अंदर लाइट्स कोई नहीं है। नहीं, और लकड़ी वाला तो हमने लिया भी अंधेरे में था, लेकिन उसका रेल ट्रैक आपको वैसे भी नजर नहीं आता, हल्का सा नजर आता है कि बस ऐसे नीचे गई है, नीचे कहाँ गई है वो नहीं पता, कहाँ गई है वो नजर नहीं आता। वो अंदर किले में है, मैं तो नहीं। और कई काफी अंदर पहाड़ों में ही बने हुए हैं, 2-3 हमने पहाड़ों वाले लिए थे। एक वो जो सर्कस हुआ है ना, वो जो लड़कों ने की है, वो पानी वाला, ओए ओए ओए, वो कितना सा डेंजरस था। पानी में जो हाँ, वही जो 4-4 आ रहे हैं तो 5-5 आ रहे हैं, वो जिम्नास्टिक। हमने नहीं देखा, पहले नहीं देखा। पहले नहीं था। हाँ, मोइस कहते हैं हमने पहले कोई शो नहीं देखा, बहुत जगह जगह शो लगे हुए थे। हम तो जो ही दोनों देखेंगे साथ मजे के। कोई 2:30 बजे था, कोई 4 बजे था, कोई 6 बजे था, डिफरेंट टाइमिंग्स लिखी हुई थी। Timing है। आप उतने बजे उस जगह पे पहुंच जाओ, बैठ जाओ वहां जाओ। खाना ले और खाना खुना नहीं तो कहती है उधर बोतलें इतनी महंगी हैं, और फिर रीफिल वही हो सकती हैं जो उधर से खरीदोगे। हमने तो इसलिए $20 वाला ले लिया था। ये अब हो सकता है रीफिल, इसको रीएक्टिवेट करवाना पड़ेगा। डीएक्टिवेट करना उसके भी पैसे देंगे। आप पैसे हैं तो झाजी वो शमाइला कह रही थी कि बैग होते थे ना बच्चियों के पीछे, वो तो लेके जाती थी, उन बैगों में मैं 4-4 बोतलें डाल देती थी। लेकिन ये बोतल हमें बहुत वर्थ इट लगी। हमने खाने के साथ भी कोक नहीं ली, इसमें कोक रीफिल कर ली, बाद में पानी रीफिल करते गए, जितना पीना था करते गए। फिर वाला नहीं था उधर से सब था ना, कोक रीफिल करो, उधर बियर्स रीफिल करो, दुनिया की हर ड्रिंक थी वहाँ पे, जो मर्जी रीफिल कर लो इस बोतल में। पे वन टाइम इस पे बोतल 1 में। टाइम, हाँ जी। और रीफिल करी। मतलब वो खुद अपना गिलास नहीं दे रहे थे जो होता है रीफिल। वो भी था, लेकिन वो 1 टाइम था, ये ऑल डे रीफिल था। आप पूरे दिन में जितनी मर्जी दफा रीफिल करते रहो। हाँ जी, तो ये हम 2 ले लेते हैं $20 का, और अपना अपना रीफिल करिए। जो मर्जी हमने इसलिए खाने के साथ कोक भी नहीं ली, हमने इसी को कोक में कोक रीफिल कर ली, मोइज ने स्प्राइट रीफिल कर ली बाद में। अच्छा, इस तरह हम पीते गए, पानी पीते रहे, काफी दफा पानी फिल किया हमने। नहीं वो कोक लेने की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब उन्होंने ये गिलास दे दिए हाँ तो कोक वालों को भी पता है वो नहीं, जब वो पिज्जा में होता ना कि लोग खाने के पूछते साथ, थे कि हाँ कौन जी सी बोतल हाँ लेनी? जी,
वहाँ पर भी ऑप्शन था, वो लगा हुआ था आप उनको ये बॉटल दो वो इसमें रीफिल कर देंगे, लेकिन अपने पैसे लेंगे। तो हमने कहा हम तो ये बाइक से रीफिल करके आए हैं, तो हमने पैसे नहीं दिए थे। हमने अपने बाइक से रिफिल कर ली थी उस जगह से। वो जगह जगह स्टेशंस बने हुए हैं, ये बॉटल एक जगह से ले लो और जगह जगह बने हुए हैं $20 की। महंगी भी तो कितनी है, $20। लेकिन वर्थ इट है पप्पू जान, इसका जब आप वो रिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम वो नहीं पता कितने पैसे हैं, वो पता ही नहीं, वो भी 20 ही क्या देंगे वो दोबारा। लेकिन पप्पू जान वर्थ इट है, क्योंकि एक पानी की बोतल $7 की थी। तो वो जितना हमने पानी पिया, हमने 10-15 बोतलें पी ली हैं। तो वो असल लेने, हाँ प्यास तो बहुत लग रही थी, सारा दिन है। तो फिर हमने यही बोतल ले ली थी। ये अच्छा रह गया था हमारा डिसीजन। ये सारी मालूमात हैं मैं व्यूवर जो हम आपको दे रहे हैं वंडरलैंड की, कि वहाँ आप पानी अपनी बोतल नहीं लेके जा सकते हैं, लेकिन उसको रीफिल नहीं कर सकते। एक दफ़ा पी लेंगे बस, फिर आप सारा दिन अगर उधर हैं तो आप रीफिल नहीं कर सकते। तो वहाँ से बोतल खरीदते हैं $20 की, ये बता रहे हैं कि आती है, All day उसको रीफिल करते रहो सारा दिन। उसमें कोक, पेप्सी, 7 अप और हर चीज़, लेमनेड, लेमनेड, हर चीज़ बियर थी। जो पीने वाले हैं उनके लिए बियर, मतलब ये सारी चीज़ें आप सारा दिन रीफिल इस $20 में करते रहो और पीते रहो। ये एक वैसे ऑफर तो सही है ना सब। कितने की थी एंट्री? हमारी 120 की आई ली थी, थी ना 120 की, 2 $120 की 2, मतलब इनकी बनी 60। वो इसलिए इन्होंने ली थी कि हमें लाइंस में ना खड़ा होना पड़े। नहीं, हमने नॉर्मल वाली ली थी, वो लाइंस ना खड़े होने वाली 150 की है। वो एक बंदे थी 150 दीजिए। सुन ले, ये जो है ना क्या वंडरफुल वंडरलैंड वंडरफुल कह रही हूँ, वंडरलैंड की वंडरफुल बातें आपको बता रहे हैं कि देखें, ये बता रहे हैं कि सिंपल इन्होंने टिकट्स ली $60 की, बड़ी महंगी हैं, बहुत महंगी हैं। अब सारी अंदर जो है ना आपकी राइड्स वो फ्री हैं सारी, लेकिन लाइंस इतनी लंबी होती हैं कि आपकी बहुत ज़्यादा मिस भी हो जाती हैं रात तक। टाइम काफी ज़ाया होता है। काफी हम वही ज़ाया होता कह रहे थे कि हम लेकिन अगर ये दूसरी बात मैं जरा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दूसरी ये कह रही है टिकट थी वो $150 की है, 150 की 1 पर्सन, और उसमें आप लाइन में खड़े नहीं होंगे, आप फास्ट अपनी लेन है, जाके दिखाएंगे और वो 1 मिनट में आपको सीट वो पे बैठा प्रायोरिटाइज करते या हैं हो उसको। सकता है उसमें भी बहुत से लोगों ने खरीदी हो, तो फिर वो तो लाइन होगी, नहीं वो तो फिजा लाइन होगी वो ना। लाइन थी, अब लेकिन मैंने भी 150 की खरीदी, इन्होंने भी वो खरीदी। बहुत थोड़ी छोटी लाइन हो। नहीं लाइन अगर होती भी है तो वो पहले उनको प्रायोरिटाइज करते हैं, हाँ, पहले वो जाके बैठेंगे। Priority जो ये लाइन है, ये लाइन वैसे ही खड़ी रहेगी, लेकिन जब ज्यादा इक्वल लाइन है तो फिर वो हाफ हाफ करते थे, क्या मतलब? हाफ उधर से लोग ले लेंगे तो थोड़े से इधर से भी ले लेंगे। 150 की भी लाइन लगी हाँ हुई तो और क्या, देखो ना जरा, वही तो मैंने कहा है 150 टिकट वालों की भी लाइन लगी होती है, इसलिए कोई जरूरत नहीं 46 वो 60 वाली ले नहीं, के लेकिन करा। वो लोग वहाँ पे हमने सुना वो भी गए थे, और हम भी सोचे थे कि अगर एक दिन जाना है ना, जिनके पास सीजन पास है वो तो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन जैसे हमने साल में एक ही दफा जाना है एक दिन, तो फिर वर्थ इट है। आप लोग, हाँ आप वो लोग कैसे? पूपना, हम वही सोचे थे कि हम लाइनों में तो आप खड़े हो, वो नहीं, भी लेकिन लाइन है। उनकी लाइन ऐसे खत्म हुई थी, ऐसे 5 मिनट में सारे लोग चले जाते थे, लेकिन वो और हम वहीं खड़े हैं। शुमाइला हमारी दोस्त जो है, फ्रेंड हमारी, वो बता रही थी कि पास लिया करो, सीजन पास पास में, ये सीजन पास में वो आप सारी फैमिली का पास है, कितने का तो बनता? आप सारे नहीं, सीजन वो जा सकते हो। सारी फैमिली का नहीं, 1 पर्सन का होता है, वो महंगा होता है, वो कितने महंगा है, वो महंगा होता ये खरीदती रही है शुमाइला है। पता नहीं मोएस, पता नहीं क्या 200-250 का होता है वो, नहीं फैमिली का भी होता है, ये तो फैमिली का लेती रही है, शायद बच्चों फैमिली का भी हो, अपना। लेकिन हम उतना जाते नहीं ना है, हमने तो साल में एक दफा जाना होता है। नहीं तो आप उतना चले जाओ, फर्क क्या पड़ता है, एंजॉय करो जा, क्यों शेरू? उधर ही बिस्तर लेके तकिया लेके उधर ही। नहीं मतलब आप 5-6 दफा चले जाओ सीजन में। जैसे मोएस कहते हैं, मैं एक दफा लाइन में खड़ा हुआ था एक झूले की, और 2 लड़कियां हैं जिनके पास फास्ट लेन पास था, मैं उसी लाइन में खड़ा हूँ, और वो लड़की आई है लेकर, वापस गई है, और लाइन में लग के मैंने देखा अच्छा वो वापस झूला लेने जा रही है, फिर मैं उसी लाइन में खड़ा हूँ, वापस आई है वो, वापस झूला लेकर आई है, फिर मैं उसी लाइन में खड़ा हूँ, वो 3 दफा उसने झूला ले लिया, और मैं अभी तक झूले तक पहुंचा ही नहीं। ये फर्क होता है, ये फर्क होता है। उसके बाद पास था ना, फास्ट लेन पास था उसके पास। चलो ये वैसे तो है कि ये आपको मालूमात भी मिल रही है हमारी गुफ्तगू से। आपको जो कनाडा में जो टोरंटो में रहते हैं, या कनाडा के बहुत से दूसरे इलाकों से भी लोग आते हैं यहाँ जब टोरंटो में,
तो वो ज़रूर जाते हैं वाटर लैंड पार्क में ना, वंडरलैंड। वंडरलैंड में। तो ये वंडर क्यों नहीं आपके मुंह पे चढ़ रहा? नहीं, वो वंडरफुल आ जाता है। नहीं, अब वाटर आ गया। अब मैंने वाटर, जान के कहा है वाटर। जान के। वो बड़ी बहुत माशाल्लाह, बहुत क्लेवर है। क्या हुआ है? क्या? एकदम आपने कवर की है। नहीं, मैं वंडरफुल कह देती हूँ ना, वंडरलैंड नहीं आ रहा, वंडरफुल आ रहा है, तो मैं उस वंडरफुल को फिर वाटर लैंड वाटरफुल, वाटरलैंड। खैर चलें, ये तो एक एंजॉयमेंट होती रहती है, हमें जान के छोड़ती रहती हैं, ये इनको बड़ी अच्छी तरह पता है। बहुत 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 फिदा जानू को भी पता है। तो चलें, बातचीत काफी कर ली। अभी शाह बोर बाबा ना- ने भी, बोर तो नहीं आप हुए? बोर ना हो जाएं, आपको मालूमात दे रहे थे। अच्छा, यहाँ आजकल एक असर चल रही है, एक मैं देखती हूँ इधर यूट्यूब पे कोई बंदा है ना, वो कनाडा के बारे में इतनी बुरी बातें करता है ना, अपने व्लॉग में कहेगा यहाँ बड़ी डेथें हो रही हैं, 6 स्टूडेंट गायब हो गए, उनकी लाशें मिल गई। ये क्या झूठ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है, ये मुझे समझ नहीं आ रही, इस प्रोपेगेंडे का मकसद क्या है वैसे? अपनी बड़ास, अपनी नॉलेज, अपना वे ऑफ गेटिंग इंटरेस्ट और क्या कहते हैं, तवज्जो। अब कौन तहकीक करने निकलेगा कि यहाँ 10 लोग मर गए थे कि 6 लोग मर गए थे, नहीं, और वो उसका- अपना छोटा छोड़ता रहता है। उसका हल ये होता है कि आप कहीं उनको बताएं, क्राइम रेट बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप उसके स्टैटिस्टिक्स देखेंगे ना, तो अभी भी दुनिया में टॉप 10 जो कंट्रीज है ना, सेफेस्ट, क्लीन, उनमें कनाडा भी है। कनाडा टॉप 5 में आता है। हाँ, 10 में भी नहीं, ये 5 मैं में। क्लियर करना चाहती हूँ अपने पाकिस्तानी क्राइम रेट, हेल्थ, एनवायरनमेंट, हर लिहाज से कनाडा बेस्ट है, बेस्ट, नो है। डाउट। ठीक है, इसका जो क्राइम रेट थोड़ा सा वो बढ़ तो गया, सब इसमें जगह से थोड़ा हर बहुत जगह होता ही होता है, होता ही है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कि लोगों ने प्रोपेगेंडा। अब ये देखें, मैंने एक टिकटॉक में देखा, वो कह रही है हाय ਅਸੀਂ तो सोच के आए से थे कि ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ होंगे, लेकिन फिर बुराइयां करनी शुरू हो गई। तो आई काहे के व्यूज के लिए करते हैं। हाँ, ऐसे तो आई काहे के लिए है ना, कनाडा जैसे मुल्क में आके तुम लोगों को यहाँ एंट्री मिल गई, बड़ी तो बात है। शुक्र करो, ये बड़ी बात है। अदरवाइज तो यहाँ वीजा ही नहीं इशू होता, अपने सगे बहन भाइयों का नहीं होता, हमारे सगे बहन भाइयों का, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। तो जो एंटर हो जाता है वो तो लकी है। यहाँ के मेहनत तो करनी है ना आपने, अब मेहनत के बगैर आपको खाना तो नहीं मिल जाना, लेकिन यहाँ जो सुकून है, यहाँ जो सेफ्टी है, यहाँ जो अल्लाह मियाँ की साफ़ सुथरी इन्वायरमेंट है, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, इतनी साफ़ सुथरी इन्वायरमेंट। फिज़ा जब उधर होती, मैं अपने घर की बात बताती हूँ, फिज़ा जब उधर थी ना, तो इसको सुबह उठना, इसका तो इसको एलर्जी हो जानी, वो जो डस्ट हर वक्त। हमारे लाहौर की सड़कें खुली रहती हैं, सड़कों को तोड़ फोड़ है, कभी नालियाँ बन रही हैं, तो कभी अच्छी बड़ी सड़कों को तोड़ के गर्दों को बाहर उड़ा दिया। तो ये जब निकलती थी घर अपने मतलब बेड से, तो इसको छींकें आ रही हैं, इसका मतलब एलर्जी की वजह से परेशान सुबह सुबह। जिस दिन से ये इधर आई है, बताओ जरा फिजा आप, सही हो जिस गई। दिन से ये इधर आई है, एक दिन भी वो वाली इसको चीज़ नहीं हुई। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एक साफ सुथरे इन्वायरमेंट में आप बैठे हुए हैं, जहाँ दरख्तों की बहुतात है। दूसरी बात पता क्या है, अमेरिका में जो हेल्थ केयर है वो प्राइवेटाइज तकरीबन हो गया है। नहीं है ही प्राइवेटाइज, उधर तो है ही नहीं। उसमें नहीं, थोड़ा सा पोर्शन होता है कि एक एस्प्रो ले सकते हो, बस इतना है सरकार से, तो वो प्राइवेटाइज है सारा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो हेल्थ है लोगों की बड़ी जल्दी गिरती है। कनाडा और अमेरिका का एक पैक्ट है जिसके थ्रू आप दोनों सिटीजनशिप रख सकते हैं। अमेरिकन अब कनेडियन नेशनलिटी लेके, सिटीजनशिप लेके इधर आते हैं सिर्फ हेल्थ के लिए, फ्री हेल्थ है, फ्री हेल्थ के लिए। ये कोई छोटी सी अपॉर्चुनिटी है। हमारे पाकिस्तान में भी जो है सिटीजन्स, कायदे ये जो अपने इमरान खान थे,
अल्लाह पाक उनके लिए जल्दी आसानी पैदा करे। उन्होंने पूरी कौम के लिए हेल्थ कार्ड बनाया इन्हीं ममालिक को देख के। नहीं, अभी भी जो सिटीजन, जैसे फिजा जान आप सिटीजन हो गई हैं तो आप पाकिस्तान जाती हैं, उधर सेटल हो जाए सपोज, या आप कहीं और किसी दुनिया के मुल्क, आप सारी जिंदगी कैनेडियन हेल्थ ले सकेंगे। इधर आके ले इधर सकते हैं आके। ना, लेकिन इधर आके ले इधर आके आप अपना ले सकती हैं। कई लोग हैं जो जाते हैं पाकिस्तान सेटल हैं, लेकिन बेनिफिट्स यहाँ से लेते रहते हैं, हर किस्म का बेनिफिट यहाँ से लेते हैं। तो आप भी इस मुल्क का तो कंपैरिजन करें उन मुल्कों को जो 5 हिस्से आगे हैं या 2 हिस्से आगे हैं। मगर ये जो हमें बोलते रहना और हमें बुराइयां करते रहना, वो अच्छी बात नहीं है जनाब। तारीफ करें जहाँ बैठ के आपको अल्लाह रिज़्क दे रहा है, जिस मुल्क में बैठे हुए आप कमाई कर रहे हैं, आप अपनी खुशहाली में हैं, सुख में हैं। टाटा ना कर दो। तो टाटा हम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं टाटा। हाँ, आप जा रहे हैं, एक जगह जाना था आपने, तो हम इसके साथ ही आपसे इजाज़त लेते हैं। इधर टाटा हो गया बाबा, तो हम भी टाटा कर देते हैं आपको। तो फिर आपको खुदा हाफिज़ करते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग, नए दिन के साथ। शाइना, सद, फिज़ा और मोए जान की ये फैमिली जो है आपसे फिर बातचीत करेगी और फिर गपशप लगाएंगे एक नए मौजूओं पे, नए बातों इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला की एक नई सुबह के साथ आप खुश रहें, जिधर भी हैं अल्लाह पाक आप पे अपनी रहमतें बरकतें करे, अपनी फैमिली पर, आप पर, आपके बड़ों पर, आपके छोटों पर, और कभी भी रिज़्क की कमी आपको ना हो, हेल्थ मिले आपको। तो कमेंट्स करना मत भूलें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और इसको शेयर करना मत भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच होगी इसकी, तो इस महफिल की और शान दोबाला होगी। अल्लाह हाफिज़।